हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम लाए हैं आपके लिए स्पेशल एलटी मैराथन क्लासेस। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स की मैराथन क्लास करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। यस, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा द ड्रैग viscous drag on a body moving in a fluid due to the difference in pressure between front and rear edge is given by F is equals to B rho की power alpha, V की power beta, A की power gamma, where B is the dimensionless number, alpha, beta, gamma are constants, rho is the density, V is the flow velocity, A is the maximum area of cross section perpendicular to the flow. What will be the value of alpha, beta and gamma? तो हमें क्या करना है, हमें yes just a second, we have to find out the value of alpha, beta and gamma. ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को देख के हमें पता चल रहा है क्वेश्चन कहां से है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्लियर, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो हमारा। तो हमें ये पता है क्वेश्चन में गिवन है F इज इक्वल्स टू बी रो वी एंड ए, जिनकी पावर्स है अल्फा, बीटा, गामा। हमें ये पावर्स निकालनी है। तो जैसे कि हमें पता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्सेस mlt माइनस टू। ओके, और यहां क्या हो जाएगा आपका b, जो कि क्या है आपका डायमेंशनलेस। रो की डायमेंशन क्या है आपकी, रो की डायमेंशन है आपकी ml क्यूब। फ्लो वेलोसिटी की है आपकी lt माइनस टू, sorry lt minus 1, and this will be L square. So here is beta, here is gamma, here is alpha. So from here you will see mlt minus 2, it will remain m alpha L 3 alpha minus beta, वो 3 alpha plus beta plus 2 gamma plus वो सॉरी t की पावर आ जाएगी आपकी माइनस बीटा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। हमने क्या करा, जो बाहर पावर्स थी उनको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहां से जब हम कंपेयर करेंगे we get the value alpha is equals to 1, beta is equals to 2 and gamma is equals to 1. So from here we will see our option number 1 is the correct option. Clear? Now moving to next question. Next question is two capillaries of diameter 5 mm and 4 mm respectively are standing in water. The water rises 5.7 mm in the first one. Diameter 5 mm, how much will it rise in the other capillary? See, we have a formula for the height which is known as H is equals to 2t cos theta r1 del g dot rho g, and similarly over this is for h1, we can write it for h2 also. Okay, so from equation 1 and 2, if I found the ratio of h1 upon h2, it will be r2 over r1. So value of r2 is 5.7 and h2 we have to calculate. Yes, h1 की क्या गिवन है आपको 5.7, h2 आपको कैलकुलेट करना है। r2 की वैल्यू 4, r1 की वैल्यू 5. So from here h2 will be 5.7 into 5 upon 4. When we calculate it, what value will come? Value will be 7.1 mm. Clear? Okay. So we can say our option number 2, which our option number 2 will be the correct option. Clear? Now moving to the next question. Question number 3. Question number 3 is a tank is filled with water up to the height h. When a hole is made at a distance h below the level of water,
what will be the horizontal range of water jet? ओके तो हमने क्या करा है, हमने एक सर्टेन हाइट तक इसको भर दिया है और उसके बाद हमने इसके वो पूछी है कि कितनी हाइट होगी। देखो जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स एट होल, वो कितनी होगी, वी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2g h-h। ठीक है, और कितना टाइम इसको लगेगा, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, √2h/g। क्लियर। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी वेलोसिटी इनटू टाइम होती है ना, तो वी कैन राइट हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 2g h-h मल्टीप्लाई बाय √2h/g। तो जो रेंज आएगी स्ट्रीम की वो आ जाएगी आपको इसको सॉल्व करके 2√h-h-h। क्लियर। So it means your option number 1 will be the correct answer. Clear? Now moving on to the next question. Next question is 3 capillaries of equal lengths. 3 कैपिलरी हमारे पास इक्वल लेंथ की, बट उनका जो इंटरनल रेडियाई है वो R, 2R एंड 3R है। क्लियर। उनको हमने सीरीज में कनेक्ट करा है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर लिक्विड फ्लोज इन अ स्ट्रीमलाइन मोशन थ्रू देम। इफ द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंटायर सिस्टम इज 77 मींस आपको पी नेट दिया हुआ है, ठीक है, प्रेशर नेट प्रेशर दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर, देन द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कैपिलरी इज, फर्स्ट कैपिलरी के अक्रॉस आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना है। देखो हमें ये पता है प्रेशर, टोटल प्रेशर निकालने के लिए वी हैव टू ऐड द टर्म्स, तो P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। वी विल पुट द वैल्यू, P इज इक्वल्स टू V 8NL पाई R की पावर 4 प्लस 8 eta, this is eta, 8 eta L over pi 2 R की पावर 4 प्लस 8 eta L पाई 3 R की पावर 4। क्लियर। तो यहां से कॉमन टर्म ले लो बाहर, V 8 eta L पाई R की पावर 4 1 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 81। तो पी नेट कितना आ जाएगा 77, P1 इसको सॉल्व करो 16 इंटू 81 प्लस 18 प्लस 16 अपॉन 16 इंटू 81। तो यहां से जो आपका P1 है उसको अगर मैं कैलकुलेट करूं इट विल बी 77 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 81 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 81 प्लस 18 और 16 34 81 से 81 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, तो बचा आपका ये। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी इससे, यहाँ पे हमारा क्या था, ये हो गया, दिस इज 81 नॉट 18, तभी मैं कहूँ इतनी कैलकुलेशन कम कैसे हमारी। तो 81 यहाँ पे आएगा प्लस 16, when we solve it it comes as 71.64 centimeter. Clear? So option number A will be the right answer. Clear? Now moving to next question. Water rises to the height of 10 centimeter in a capillary. Mercury falls to the depth of 3.42 centimeter in same capillary. If the relative density of mercury is itna and angle of contact is itna, the ratio of surface tension of water in mercury. देखो
इसमें आपको वाटर राइज की हाइट दे रखी है कैपिलरी में, फॉल अ डेप्थ वो भी गिवन है। तो आपको निकालना क्या है बेसिकली, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन। तो देखो एच की वैल्यू हमें पता है 2t cos थीटा, 2t cos थीटा आर रो जी, आर रो जी। क्लियर? तो यहां से एच वाटर निकाल लो, तो 2TW मतलब टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, cos थीटा ओवर r इंटू 1 इंटू जी, दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको मरकरी का निकालना है। तो ये हो जाएगा एच एम इज इक्वल्स टू 2TM cos, कितना गिवन है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 135, तो ये हो जाएगा 135 ओवर r इंटू 13.6 इंटू जी, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डिवाइड कर रहे हैं 1 एंड 2 को। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एच डब्ल्यू ओवर एच एम विल बी, दोनों इक्वेशंस को रखेंगे, बाकी चीजें कट जाएंगी भाई, आर से आर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल, ये आएगी हमारी वैल्यू 13.6 ओवर cos 135 TW ओवर TM। क्लियर? अब cos 35 की वैल्यू क्या है हमारी, cos 35 की वैल्यू है 1/√2, तो ये हो जाएगी 13.6 1/√2 ऊपर TW TM। क्लियर? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैल्यू जो आएगी, जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ पे जो TW की वैल्यू है वो आ जाएगी TM के साथ 10/65.76, तो TW ओवर TM जो होगा वो होगा 0.15। क्लियर? क्या होगा 0.15। सो जो आपका ऑप्शन सी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी will be the correct answer. Clear? Okay. Now moving to next question. Just a second. Statement of Bernoulli's theorem for a liquid is consistency of देखो, according to Bernoulli's theorem, हमें ये पता है क्या होगा बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग, देखें ये होगा P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, जहां पे P तो क्या होगा, प्रेशर फॉर अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, 1/2 रो वी स्क्वायर क्या होगा, ये होगा काइनेटिक एनर्जी फॉर अ यूनिट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ PA, और रो जी एच क्या होगा, रो जी एच आपका होगा पोटेंशियल एनर्जी फॉर द यूनिट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ PA। PA is means Pascal. Okay, so we can conclude the option number B will be the right answer. Okay, now moving to the next question. Two water drops of same radii are falling in air with terminal velocity capital V. If both drops are collapsed into a big drop, then terminal velocity shall be, छोटी छोटी दो ड्रॉप थी उनको मिला के एक बड़ी ड्रॉप बना दिया है, और वहां से अब उन्होंने पूछा है कि उसकी कितनी टर्मिनल वेलोसिटी होगी। अब देखो हमें ये पता है जब भी दो ड्रॉप्स कोलैप होंगी तो जो वॉल्यूम होगा वाटर का वो रहेगा, सेम रहेगा। तो जब बिगर फॉर्म कर रही है तो वॉल्यूम तो सेम ही रहा, तो हम कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो आर है ड्रॉप का, और वो कंबाइन करा गया है विद द रेडियस कैपिटल आर। तो हम लिख सकते हैं 2 × 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब।
तो कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी 2 1/3 स्मॉल आर। अब हमें पता है टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है रेडियस के स्क्वायर के। तो हम लिख सकते हैं v डैश टी ओवर वी टी कैपिटल आर स्क्वायर ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से v डैश टी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर का स्क्वायर वी टी। यस, तो फिर यहां से क्या वैल्यू आएगी, यहां से वैल्यू आएगी v डैश टी इज इक्वल्स टू 2 2 v मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो आई कैन से द ऑप्शन नंबर B will be the right answer. Clear? Okay. Now moving to next question. Question number 8. A spherical liquid drop of radius r. हमारे पास क्या है, रेडियस r एक है, उसकी स्फेरिकल बॉल ड्रॉप जो है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। मतलब ये कोई ड्रॉप थी, ये क्या हुई है, 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। ओके, सो जब ये इसमें बटी है, 8 ड्रॉप्स में बटी है, तब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली वर्क डन निकालना है प्रोसेस के। तो हम देख रहे हैं कि जो ड्रॉप है वो ब्रेक हुई है स्मॉलर ड्रॉप्स में, तो वी कैन राइट 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर चेंज इन सरफेस एरिया होगा, चेंज इन सरफेस एरिया, तो क्या होगा, 8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर बाय 2 का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर की पावर 4 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आर स्क्वायर। ओके, सो वी कैन राइट 4 pi r square t. So we can say the option number 3 means C part will be the right answer. Clear? Now moving to the question number 9. Question number 9 is two spherical soap bubbles of diameter 10 centimeter. ठीक है, दो spherical soap bubbles हैं जिनका diameter क्या है 10 centimeter and 6 centimeter respectively are formed at the end of narrow horizontal tube. Pressure difference between the end of the tube is, surface tension of a soap is इतना, तो pressure difference between the end of the tube निकालना है। क्लियर? देखो, हमें पता है कि सोप बबल के लिए डबल वैल्यू हो जाती है, जैसे P की वैल्यू क्या थी 2T अपॉन R, लेकिन सोप बबल के लिए वो क्या हो जाएगी 4T अपॉन R। क्लियर? अब डेल्टा P कैसे निकालेंगे, P2 माइनस P1, तो ये हो जाएगा 4T बाहर 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। क्लियर? वैल्यू पुट करो, 4 मल्टीप्लाई बाय T की वैल्यू कितनी गिवन है 10, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं लिख सकती हूँ 0.03। ओके, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करके 0.05 माइनस 0.03 ओवर 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.03। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आएगी 1.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल इज, दो सोप बबल है उनके बीच का प्रेशर, मतलब कि यहां से हम लिखते हैं पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू 4T अपॉन आर। तो 4T अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1.01 माइनस 1, ये हो जाएगा 0.01 ATM, और ये क्या हो जाएगा 4T अपॉन R2, ये हो जाएगा 1.03 माइनस 1, ये होगा 0.03 ATM। तो अगर मुझे रेशियो निकालना है R2 ओवर R1 का, तो मैं निकालूंगी 0.03 ओवर 0.01।
तो आ गया 3:1। ओके, तो अब मुझे पता है V2 ओवर V1 क्या होता है, R2 ओवर R1 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 3/1 का होल क्यूब, मतलब कि 27/1 मीन्स ऑप्शन A will be the correct answer. Clear? Okay. Now moving to the next question. A water drop of radius 1 centimeter is broken into 1000 equal drops. If surface tension of water is 75 dyne per centimeter, the gain at the surface energy will be. Okay, देखो हमें ये पता है कि जो just a second, yes, W is equals to T 4 pi r square n की पावर 1/3 माइनस 1। क्लियर? अब T की वैल्यू तो गिवन है, टेंशन आपको गिवन है 75 डाइन पर सेंटीमीटर। 75 डाइन पर सेंटीमीटर का मतलब है 75 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर। क्लियर? और पाई क्या है, पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.14 और की वैल्यू आपकी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर और n दे रखे हैं 1000। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज इन द अबव फॉर्मूला। वी गेट W is equals to 75 multiplied by 10 की पावर -3 multiply by 4 multiply by 3.14 multiply by 10 की पावर -2 multiply by 10 की पावर -2 multiply by 1000 की पावर 1/3 -1। तो 75 multiply by 10 की पावर -3 multiply by 4 minus multiply by 3.14 into 10 की पावर -4 into 9। क्लियर? सो यू कैन सी यहां से हमारी इतनी वैल्यू आई, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इट विल बी रिटन एज 27000 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 10 की पावर -7। तो ये हो जाएगा 8.5 इंटू 10 की पावर -4 जूल। क्लियर? ओके, so I can say, just a second, so I can say option number A will be the right answer. Option number A will be the right answer. Clear? Now moving on to the next question. Question number is 0.0314 centimeter cube of a liquid is flowing out per second. Okay, इतना liquid हर सेकेंड बाहर आ रहा है थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ 1 mm रेडियस। तो velocity of liquid at a point on the axis of the capillary. So basically we know that फ्लोइंग वाला आपको बता रखा है लिक्विड इतने फ्लो से निकल रहा है, तो मतलब कि Q 0.0314 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब R जो है वो क्या है 1 mm, इसका मतलब क्या 0.1 सेंटीमीटर टू R इज इक्वल्स टू 0.2 सेंटीमीटर। तो Q की वैल्यू क्या आई A/V, तो Q क्या आया π/4 इंटू d² इंटू V। तो यहाँ जाएगा 0.0314 इज इक्वल्स टू 3.14 over 4 multiply by 0.2 multiply by 0.2 into V. Clear? So from here we can say V is equals to 0.03 or multiply by 4 over 3.14 into 0.2 into 0.2। तो V की वैल्यू कितनी आएगी, सब सॉल्व करके आएगी
ये गया, ये गया, ये गया, ये भी गया, 1 centimeter per second. Option C will be the right answer. Clear? Okay. Now moving to the next question. Young's modulus Y, bulk modulus K, and Young's modulus of rigidity, okay, eta, are related as. See, as we know that Young's modulus is basically the mechanical property of the material to the it is a basically mechanical property of the material to withstand compressions or elongulations with respect to the length of linear elastic solid like rods, wires, etc. Or in the simpler words, we can say that Young's modulus, yes, Young's modulus is equals to normal stress over normal strain. Okay, so basically we can say K के लिए y upon 3 1 minus 2 sigma is equals to 1 upon 3 sigma minus b. क्लियर? तो y जो है वो क्या हो जाएगा आपका 3k 1 minus 2 sigma और क्या हो जाएगा y is equals to 2 eta 1 plus sigma. तो बेसिकली y क्या है आपका यंग्स मॉडुलस, k क्या है आपका बल्क मॉडुलस और eta क्या है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. क्लियर? सो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन. This will be your second. If we are talking about, just a second. Yes. So from here you will see कि हमने y की वैल्यू बता दी कितनी है कि 2 eta 1 plus sigma. ओके, तो y आपको पता है, k आपको पता है और eta आपको पता है. तो यहां से जो आपका सिग्मा है वो हो जाएगा 1/2 1 minus y upon 3k. This is equation third. Equation 4 will be sigma is equals to 1/2 y upon 2 eta minus 1. This will be equation 4th. Now from equation third and fourth से can I write 1/2 1 minus y upon 3k is equals to y upon 2 eta minus 1. Clear? So हम यहाँ से लिख लेंगे 1 minus y upon 3k is equals to y upon eta minus 2. Clear? Now ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि क्या रखा था yn माइनस 2. तो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करो. ये हो जाएगा आपका दिस विल बी 3k minus y is equals to 3yk upon eta minus k 6k. तो 9k is equals to y 3k over eta plus 1. Clear? So from the values I can say that option B will be the right answer. Clear? So option B will be the right answer. Now moving to the next question. Next question is choose the correct relation
choose the correct relation among elastic constant y, k and from the following. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलता है. हमें ये पता है क्या रिलेशन होता है. रिलेशन होता है हमारा y is equals to 2 eta 1 plus mu. This will be the first equation. Y is equals to 3 k 1 minus 2 mu. Second equation. So from equation 1 and 2, दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं from equation 1 and 2. Okay, so you can write y is equals to 9k eta over 3k plus eta. तो हो जाएगा 1 upon y is equals to 1 upon 3n plus 1 upon 9k. Clear? So you will see the option D. Option D will be the right answer. Clear? Now moving to the next question, question number 15. Question number 15 is the frequency of light spring when 1 kg weight is suspended on its end is 4 oscillation per second. If 4 kg weight suspended to the same spring, the frequency of oscillation shall be. See, mass given है, mass will be m1 is equals to 4 kg. Clear? n1 is equals to 4 oscillation. m2 is equals to 4 kg. n2 आपको निकाल. Clear? So I can write n is equals to 1 upon 2 pi under root k upon m. Clear? n1 के लिए भी ये वैल्यू रहेगी 1 upon 2 pi under root k upon m1. और n2 के लिए क्या वैल्यू रहेगी 1 upon 2 pi under root k upon m2. क्लियर? तो n2 ओवर n1 कितना होगा 1 upon 2 pi upon 1 upon 2 pi k over m2 over k over m1. तो n2 ओवर n1 किसके बराबर आएंगे अंडर रूट m1 ओवर m2 के. ठीक है, 1 upon 2 pi m1 ओवर m2. तो n2 ओवर n1 जो होगा वैल्यू पुट करने के बाद हो जाएगा आपका अंडर रूट 1/4 मतलब कि 1/2. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका n2 है उसकी वैल्यू 4/2 मतलब कि 2 per second. मतलब कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. A brass rod of length 2.5 meter is clamped at the center. It emits a note of frequency 720 when it's vibrate longitudinally. If the density of brass is 8.3 gram per centimeter cube, its Young's modulus of elasticity in 10 की power 11 dyne is. See, just a second. देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है F is equals to 1 upon 2L under root y upon रो. अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर हमें L की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और डेंसिटी गिवन है. नाउ वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला. ओके, सो by putting the values in the formula, we know this is your Young's modulus, this is your density, this is your length. We will put the value 720 is equals to 1 upon 2 into 2.5
into 10 की square under root y upon 8.3. Clear? So now on solving it, I got 720 is equals to 1. 720 अभी इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई करके, it will be written in such a way 720 multiply by 5 multiply by 10 का स्क्वायर का होल स्क्वायर is equals to y upon 8.3. ओके, तो इट विल बी 36 into 10 की पावर 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y अपॉन 8.3. तो जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, इट विल बी 8.3 मल्टीप्लाई बाय 1296 इंटू 10 की पावर 8. ओके, सो y की वैल्यू आएगी 10756.8 इंटू 10 की पावर 8. So on solving, it will get a value 10.76 into 10 की power 11 dyne. So option number D will be the correct option. Clear? Okay. Now moving to next question. A wire is 5 meter long. एक वायर है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है, मतलब कि आपको L गिवन है. फाइव मीटर लॉन्ग. रेडियस गिवन है आपको 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर. ठीक है, और वेट गिवन है, वेट कितना गिवन है 5 kg. उस 5 kg वेट को सस्पेंड करा गया है एक चीज के ऊपर. इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 10 की पावर -3 मीटर. तो आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताना है MKS यूनिट्स में. क्लियर? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू f अपॉन ए इंटू L ओवर डेल्टा L. क्लियर? तो f अपॉन ए का मतलब क्या है, f क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन. अब यहाँ पे ये हैंग है तो a क्या हो जाएगा, a विल बी कन्वर्टेड एज g. तो ये आ जाएगी y इज इक्वल्स टू mg ओवर एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू L ओवर डेल्टा L. क्लियर? नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन इंसर्ट द वैल्यूज. क्लियर? तो यहां से हम इंसर्ट करेंगे वैल्यूज को. C y इज इक्वल्स टू 5 g हम क्या ले रहे हैं 10, y की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 0.5 इंटू 10 की पावर -3. आई कैन राइट 5 इंटू 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 10 की पावर -3. क्लियर? सो it will be, if I see, it will remain 10 over 3.14 into 10 की power 11. So we get the value 3 into 10 की power 11 approx. So option B will be the right answer. Okay. Now moving to the next question. Question is the expansion of a string obeying Hooke's law. एक क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसका एक्सपेंशन हो रहा है और वो हुक्स लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो. हुक्स लॉ क्या है आपका, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. यस, तो जो वेलोसिटी है साउंड की इन दिस एक्सपेंडेड स्ट्रिंग वो क्या हो जाएगी v. ओके, सो अगर एक्सपेंशन इंक्रीज होता है 1.5x तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ स्ट्रिंग विल बी, आपको साउंड बतानी है वो क्या होगा. क्लियर? तो हुक्स लॉ आपने बता ही दिया क्या होता है.
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वो कितनी होगी? v is equals to velocity of sound will be 1 upon lambda under root h upon m। क्लियर? ये क्या होगी? h upon m। तो हमें क्या पता है? हमें पता है यंग मॉडुलस होता है f upon a डॉट l ओवर डेल्टा l। क्लियर? सो डेल्टा l को चाहे आप यहाँ पे x लिख लो, तो मैं यहाँ पे x लिख रही हूँ फॉर माई कन्वीनियंस। क्लियर? क्योंकि वैल्यू आपको x में गिवन है इसलिए। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा f इज इक्वल्स टू y a x ओवर l। इसका मतलब क्या है? f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा स्क्वायर रूट ऑफ f और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहां से v1 ओवर v2 मतलब कि रूट x1 ओवर 1.5 x1 वो क्या वैल्यू होगी? v ओवर v2 अंडर रूट 1 ओवर 1.5। तो v2 की वैल्यू हो गई अंडर रूट 1.5 v। तो इसका मतलब क्या है? जब इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो इट विल बी 1.22। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर? एनी डाउट? Okay. Now moving to next question. Next question is the relation between Poisson's ratio sigma, bulk modulus of elasticity K and modulus of rigidity eta is। सी, हमारे पास पहले ही रिलेशन है जिसको हम डायरेक्टली याद रखते हैं। गामा इज इक्वल्स टू 3k 1 minus 2 sigma 1, y is equals to 2 eta 1 plus sigma, ये हो गया 2। तो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वेशंस को, दोनों यंग्स मॉडुलस के बराबर है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये होगा 3k 1 minus 2 sigma is equals to 2 eta 1 plus sigma। तो ये जाएगा 3k minus 6k sigma is equals to 2 sigma वो 2 eta plus 2 eta sigma। क्लियर? तो यहां से वैल्यू आएगी 3k minus 2 eta is equals to, सिग्मा कॉमन ले लो, सिग्मा 2 eta इधर गया है तो ये हो जाएगा प्लस 6k। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा की वैल्यू विल बी 3k minus 2 eta 6k plus 2 eta। Clear? So we can say that our option number B will be the right answer. Clear? Okay, just wait. Option B will be the right answer. B. Now moving to next question. Question number 20. Clear? Question number 20 is a steel wire is of length 1 meter and area of cross section 1 centimeter square. If Young's modulus of steel is 10 की power 11 Newton per meter square, the force required to elongate the wire by 1 mm is। देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर एरिया गिवन है, यंग्स मॉडुलस गिवन है और लेंथ गिवन है। तो हम अगर देखते हैं डिटेल्स में, एरिया कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर।
यंग्स मॉडुलस y 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और L की वैल्यू गिवन है 1m। तो डेल्टा L जो है वो हो जाएगा 1m। तो डेल्टा L की वैल्यू हो जाएगी बेसिकली, डेल्टा L है आपका 10 की पावर -3, सॉरी 10 की पावर -3, L है आपका 1m और ये है 10 की पावर -3। तो यंग्स मॉडुलस क्या होएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यस, क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को कैसे लिखते हैं, स्ट्रेस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला होता है F अपॉन ए और स्ट्रेन के लिए होता है आपका L ओवर डेल्टा L ओवर L, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, है ना। तब यहां से जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी एफ एल ओवर ए डॉट डेल्टा एल। यस, तो यहां से एफ जो होगा होएगा ए डेल्टा एल डॉट वाई ओवर एल। तो होगा 10 की पावर -4 डॉट 10 की पावर -3 डॉट 10 की पावर 11 ओवर 1। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7 और ये होगा 10 की पावर 11। तो 11 minus 7 10 की पावर 4, मतलब 10 की पावर 4 न्यूटन will be the answer, means your option number B will be the right answer. Clear? Now moving on to the next question. Next question is, the length capital L of a metallic wire of Young's modulus Y increased by L on loading it with some weight. The potential energy stored in the wire per unit volume is. Okay, so the four options were given over there. 1 by 2y L over L, 1 by 2y L square over capital L, 1 by 2y L square over capital L square, 1 by 2y L over L square. Okay, just a second. Okay, so we know that dW will be, means work done is basically force product डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो dW की अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है L, तो हमने क्या लिया dl। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन F अपॉन ए ओवर डेल्टा L ओवर L। तो मैं इसको लिख सकती हूँ F अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय L ओवर L। क्लियर? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F की वैल्यू y इंटू ए इंटू L ओवर कैपिटल L। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू W। तो हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, 0 टू W, dW का इंटीग्रेशन करेंगे। तो dW विल बी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू x y इंटू a इंटू L ओवर L dl। क्लियर? सो यू विल सी, इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो ये हो जाएगा W 0 टू W। यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन होगा, बेसिकली L का। तो ये वाली टर्म्स बाहर आ जाएंगी, y इंटू ए ओवर L। तो अंदर बचेगा dl, dl का हो जाएगा L स्क्वायर बाय 2। लिमिट रखेंगे 0 टू L। तो ये हो जाएगी आपकी W इज इक्वल्स टू y इंटू ए ओवर L, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो L स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो वर्क डन आपका कितना आ जाएगा, वर्क आ जाएगा आपका 1 बाय 2 y a कैपिटल L L स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन। ओके, क्या आ गया आपका, क्या है आपका वर्क डन। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट दी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
ठीक है, तो ये हो जाएगी W over V is equals to 1/2 y into A L into V into L square. क्लियर? सो यहाँ से हम जो एनर्जी आएगी U वो आएगी 1/2 मल्टीप्लाई y into A over L ब्रैकेट A into L into L square. क्लियर? तो जो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी U is equals to 1/2 y L square over capital L का square. Okay, so this is the answer. So we can say that option number C will be the right answer. Option number C will be the right answer. Okay, now moving to next question. Question number 22. See, a cube of aluminium of side 10 centimeter is subjected to shearing force of 100 Newton. The top surface of the cube is displaced by 0.01 centimeter with respect to bottom. The value of modulus of rigidity. Okay, so you will see that there is a cube. कंडीशन समझते हैं कि कैसे डिस्प्लेस हुआ है. ओके, ये आपका क्या है, क्यूब जो कि डिस्प्लेस करा गया है. ओके, दिस इज del A, this is del A, this is A, this is phi, this is A, this is phi. Clear? So phi is basically Young's modulus. Okay, so from the question what is given? It is given that side of cube A कितना given है? 10 centimeter. Okay, so area of given face वो कितना है? A square. एरिया ऑफ गिवन फेस कितना है? A square. तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 का स्क्वायर मतलब कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब जो साइड है वो चेंज हो रही है कितनी? 0.01 मतलब कि आप कह सकते हैं डेले वो हो रही है 0.01 सेंटीमीटर. तो जो शेयर स्ट्रेस है वो कितना हो जाएगा? शेयर स्ट्रेस मींस फोर्स अपॉन एरिया. आपका जो शेयर स्ट्रेस है वो हो जाएगा F अपॉन ए. F मतलब 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4. तो ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्लियर? अब शेयर मॉडुलस बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ किसका? आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. यस, ये अभी हम किसकी बात कर रहे थे? शेयर स्ट्रेस की. शेयर स्ट्रेस किसका प्रोडक्ट है? शेयर स्ट्रेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ शेयर स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. Wait, I'm adding a new slide. Yeah. So from here you will see that shear stress is equals to shear strain multiply by modulus of rigidity. Clear? So we can say y is equals to del A over A. Yes. So
on putting the values we will find 0.01 over 10 is equals to 0.001. तो जो g की वैल्यू है वो क्या है 10 की पावर 4 ओवर 0.001 तो हो जाएगी 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. It means your option number C will be the correct answer. Clear? Now moving to the next question. Next question is torsional couple required to twist a cylinder of length L by 2, radius R and modulus of rigidity eta. One turn will be. अब देखो we know that जब हम उसे ट्विस्ट करेंगे तो देयर विल बी अ ट्विस्टिंग एंगल. वहां क्या हो जाएगा ट्विस्टिंग एंगल होगा. यस सो यू विल राइट ट्विस्टिंग कपल G इज इक्वल्स टू C थीटा. ठीक है G इज इक्वल्स टू C थीटा. तो यहां से हम लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू N रो R की पावर 4 2L इंटू थीटा. अब जो L है वो बेसिकली कैपिटल L बाई 2 ही. एंड फॉर वन टर्न जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा फॉर वन टर्न एंगल ऑफ रोटेशन विल बी 360 डिग्री और 2 पाई. yes so on putting the values 2 pi multiply by pi eta r की पावर 4 2 multiply by L by 2. क्लियर. तो यहां से हम वैल्यूज जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट करने पे हमारा जो कपलिंग ये ट्विस्टिंग कपल है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए. देखो ये ऊपर जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. यही कर दो चलो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर ईटा आर की पावर 4 ओवर कैपिटल L. So I can see that option A will be the right answer. Clear? Now moving to next question. Next question is the velocity at which the relativistic momentum of the particle become twice its Newtonian momentum is. Okay. So basically यहाँ पे हमारे पास रिलेशन होता है आपका एक मास और रेस्ट मास के बीच में जिसको हम क्या कहते हैं रिलेटिविस्टिक मोमेंटम. फॉर्मूला फॉर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम. यस फॉर्मूला फॉर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम. फॉर्मूला फॉर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हमारे पास है mv इज इक्वल्स टू m नॉट v ओवर 1 minus v square upon c square, where v is the mass, m is the mass, v is the velocity, m naught is the rest mass and c is the speed of light. So if we talked about according to the question from Newton momentum, 2 m naught v will be m naught v over 1 minus v square upon c square. So we can say under root 1 minus v square over c square 1 by 2 जो कि बराबर आएगा 1 minus v square upon c square is equals to 1 by 4. क्लियर. तो यहां से 1 minus 1 by 4 आ जाएगा 1 minus 1 by 4 v square over c square तो ये होगा 3 by 4 is equals to v square over c square. So
v स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, c स्क्वायर 3/4, तो v की वैल्यू यहां से आ जाएगी √3/2c, v इज इक्वल्स टू √3/c। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर 3, yes, option number D will be the right answer. Option D will be the right answer. Write down. Okay, this will be the right answer. Now moving to the next question. This is the last question of this marathon. Okay, a body of specific heat इतना मतलब कि 0.2 किलो कैलोरी पर kg degree Celsius is heated through 100 degree Celsius. The percentage increased in it mass is. Okay, so basically जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, मतलब क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक हीट कितनी गिवन है बॉडी की, वो गिवन है आपको, स्पेसिफिक हीट इज 0.2, यस, और वो 100% एब्जॉर्व कर रही है, क्लियर। ओके, सी 2 kilocalories per kg degree Celsius. When I converted this 0.2 kilocalorie per kg degree Celsius into joule per kg square, the value becomes 8.4 into 10 की power 2 joule per kg square. Joule per kg square. तो this we can say when a body of specific heat इतनी स्पेसिफिक हीट कितनी 8.4 इंटू 10 की पावर 2 जूल पर केजी स्क्वायर, इसको हीट करा हमने किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा, तो जो एनर्जी एब्जॉर्व होगी बॉडी में होगी डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू थीटा। तो एम की वैल्यू हमें पता है कितनी, वो तो हमें निकालनी है बेसिकली, डेल्टा एम, तो एम इज इक्वल्स टू m multiply by 8.4 into 10 की पावर 2 into 10 की पावर 2 जूल। तो ये हो जाएगी आपकी m multiply by 8.4 into 10 की पावर 4 जूल। तो डेल्टा m कितना आ जाएगा, वो आएगा डेल्टा q ओवर c स्क्वायर। तो m इंटू 8.4 इंटू 10 की पावर 4 ओवर 9 इंटू 10 की पावर 16। क्लियर, जस्ट अ सेकेंड, 10 की पावर कितना आ गया आपका 16, तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा m जो है वो आया m इंटू 8.4 इंटू 10 की पावर 4 ओवर 9 इंटू 10 की पावर 16। तो डेल्टा m ओवर m की वैल्यू कितनी है 9.3 इंटू की पावर -13। क्लियर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.3 इंटू 10 की पावर -11%। Clear? So I can say that option C will be the right answer. Option C will be the right answer. Okay. So thank you everyone. आज की मैराथन यही खत्म होती है. We will meet in our next class, जहां पे हम और भी अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. Clear? So basically, thank you. Have a nice day. Have a great day ahead. Thank you. And if in case you have any problem, please let me know in the comment section. I will definitely going to resolve your problems. Thanks a lot.